Hello students, today will we discuss about tragedy and its various types। आज हम ट्रेजिडी और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रामा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट, ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। Comedy is a lighter form of drama which aims primarily to amuse and ends happily. Comedy strives to provoke smiles and laughter. Both wit and humor are used in it. Tragedy has an unhappy end. It is a drama which recounts an important and causally related series of events in the life of a person of significance. Such events culminating in an unhappy catastrophe, the whole treated with great dignity and seriousness. Tragedy is a reversal of fortune from prosperity to adversity. John Milton defines it in the following words. Okay. O fate of chance and change in human life. Aristotle's definition of tragedy. Aristotle defines tragedy as the imitation of an action, serious, complete, and certain magnitude, in a language beautiful in different parts with different kinds of embellishments, through actions and not narration, and through scene of pity and fear, bringing about the catharsis of those emotions. This definition has wide implications. It falls naturally into two parts. The first part, from the imitation of an action to and not narration, is concerned with tragedy as one of the imitative art and points out its medium, objects and manner of imitation. The second part is concerned with the functional and emotional effects of tragedy. देखिए ट्रेजिडी क्या है। ये एक तरीके का दुखांत नाटक है। ओके, नाटक को दो भागों में बांटा गया, ट्रेजिडी यानी दुखांत नाटक, कॉमेडी यानी सुखांत नाटक। कॉमेडी जो होता है वो नाटक का हल्का रूप होता है, जिसका प्रथम एम क्या होता है, मनोरंजन करना, और उसका अंत बहुत अच्छा होता है। कॉमेडी हमें चेहरे पर हंसी लाती है, मुस्कान लाने का प्रयास करती है। लेकिन ट्रेजिडी का जो एंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन से संबंधित करुणात्मक घटनाओं की श्रृंखला का वर्णन किया जाता है। ट्रेजिडी में भाग्य उल्टा हो जाता है, वह संपन्नता से आपदा की ओर चला जाता है। जॉन मिल्टन ने इस परिभाषा को अपने शब्दों में कहा है, क्या कहा, ये भाग्य का संयोग है एवं मानव जीवन में परिवर्तन का नाटक होता है। अरस्तु ने भी निम्न शब्दों में अपनी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है, अरस्तु ने, ट्रेजिडी किसी घटना का अनुकरण होता है जो स्वयं में संपूर्ण और सीरियस होता है। इसका एक आकार होता है, ये अलंकृत भाषा से सुसज्जित होता है। इसमें क्या होता है, ये दर्शक के मन में दया भय की भावना उत्पन्न करता है। ओके, इसके दो भाग होते हैं। प्रथम भाग किसी घटना के अनुकरण से लेकर वर्णन तक है। इसका संबंध दुखद नाटक की अनुकरणीय कला और इसके माध्यम उद्देश्य से अनुकरण के तरीकों को बताता है। दूसरा जो भाग्य होता है वो ट्रेजिडी के कार्य एवं धनात्मक प्रभाव से होता है। ओके, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। Aristotle's definition of tragedy includes the following points: imitation, tragic plot, embellished language, the tragic hero, the element of pity and fear, the tragic effect और the tragic end. ओके, फर्स्ट पढ़ेंगे हम इमिटेशन। A tragedy imitation on action
but its objects limitations are serious actions. The word serious means weighty or important. This action may either to be external or internal. यानी कि अनुकरण करना। प्रत्येक दुखांत जो नाटक होता है वो किसी कार्य का अनुकरण करना होता है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई जाती है। ये घटना बाहरी या आंतरिक हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रेजिक प्लॉट। Tragedy imitation and action and its plot consists of a logical and inevitable sequence of events. The action is the tragedy imitation is its plot. The action, the plot must be complete. It must have a beginning, a middle and an end. देखिए, जो दुखांत नाटक होता है, जो ट्रेजिडी होती है, ये तो अनुकरण करता ही है। इसमें एक्शन या घटना का अनुकरण करता है और घटना इसका प्लॉट होती है। ट्रेजिडी का प्लॉट पूर्ण होना चाहिए, इसका आरंभ, मध्य तथा अंत होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसका जो प्लॉट है कथानक है लंबा होना चाहिए। घटना का नियमित विकास होकर वह दुखांत अंत तक पहुंच सके। नेक्स्ट है एम्बेलिश्ड लैंग्वेज। By the various embellishments in the various parts, Aristotle means words and song. Tragedy imitation through words in the dialogue and song in the correct part, but Aristotle does not consider them essential or indispensable for the success of a tragedy. दुखांत नाटक के विभिन्न भागों में प्रयुक्त हुई अलंकृत भाषा से अरस्तु का तात्पर्य काव्य एवं गति से है। दुखांत नाटक वार्तालाप में पद्य के माध्यम से अनुकरण करता है। नेक्स्ट है द ट्रेजिक हीरो। Every tragic hero suffers from some weakness or flaw in his character which is beyond his control. It brings about his doom or destructions. देखिए, जो है इसमें जो ट्रेजिक हीरो होता है वो मेन करेक्टर होता है। इसमें ना तो ये कहते हैं कि ना तो अच्छा होना चाहिए, ना ही पूरी तरह से बुरा होना चाहिए। उसके करेक्टर की जो दुख होता है उससे क्या होता है, हमारी भावनाओं को धक्का लगता है। ट्रेजिक हीरो जो होता है वो हमसे अधिक अच्छा होता है। मार्लो ने कहा है, ट्रेजिक हीरो साधारण स्तर का व्यक्ति होता है परंतु उसकी प्रफुल्लता तथा महत्वाकांक्षा बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है। नेक्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ट्रेजिक वेस्ट। The tragedy gives an impression of tragic waste. The whole actions of play brings no good mark. Antony says his speech given on Caesar's funeral. दुखांत जो नाटक होता है, ट्रेजिडी होती है, उसमें विनाश का भाव होता है। संपूर्ण नाटक की घटना का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। ओके, जब सीजर की डेथ हुई थी तो मार्क एंटोनी ने कहा था, मेरे देशवासियों, सीजर का पतन कितना महान पतन था। ओके, नेक्स्ट है डायलॉग्स। डायलॉग इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी। इट इज ए थ्रू डायलॉग दैट द कैरेक्टर्स इन द प्ले रिवील देमसेल्व्स। डायलॉग्स जो हैं वो ट्रेजिडी का एक आवश्यक रूप होते हैं। डायलॉग के माध्यम से ही करैक्टर को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। द हीरो ऑफ द ट्रेजिडी शोन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोरल ऑर्डर। द हीरो मेक्स सच मिस्टेक्स एंड फॉर इट ही इज पनिश्ड, बट हिज हीरो एरर्स देयर गोज ऑन कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड। देखिए, जो ट्रेजिडी में क्या होता है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। इसमें अगर मेन हीरो कोई भी गलती कर देता है तो उसको दंडित किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो उसे जो दंड मिलता है वो उसके जो उसने इतनी ज़्यादा बड़ी गलती नहीं की होती है जिससे उसे बहुत ज़्यादा बड़ा दंड मिलता है। जब नायक उससे बहुत जानबूझकर सब कुछ गलती करता है तो उसके मस्तिष्क में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है।
ओके, तो उसे हम आंतरिक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है द सेंस ऑफ पोएटिक जस्टिस। ए ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोएटिक जस्टिस, द रॉन्ग डियर डज नॉट गो अनपनिश्ड। देखिए इसमें क्या होता है, ट्रेजेडी पोएटिक जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित होती है। गलती करने वाला बिना दंडित हुए नहीं रहता है। यदि आवश्यक है यही गलती करने वाला बिना दंडित हुए रहता है तो समाज में अन्याय एवं अव्यवस्था फैल जाती है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल्स देयर आर 6 मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। फर्स्ट प्लॉट और मेलोस एंड सेकंड कैरेक्टर और एथोस, थर्ड थॉट और डायमोडा, फोर्थ मेलोडी और मेलोस, फिफ्थ डिक्शंस और सिक्स है स्पेक्टिकल्स। ये अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इन्होंने अपने 6 एलिमेंट्स को बहुत ही इसेंशियल बताया है ट्रेजेडी के लिए कि ये सब होने चाहिए। ओके, अरिस्टोटल्स लेज डाउन फॉर इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ करेक्टराइजेशन। इन्होंने करेक्टराइजेशन के लिए 4 क्वालिटीज बताई हैं। फर्स्ट द करेक्टर मस्ट बी गुड, सेकेंडली ही मस्ट बी appropriate, thirdly he must have a consistency, and fourthly he must be life like. In tragedy the principal character is called the tragic hero. The tragic hero should neither be perfectly good nor utterly bad. Okay.